All right, good morning, audience. Yeah, it's good morning. Okay, and this is our third meeting for ACCA SBL March 2020. And in the first meeting, we discussed the question paper. It's already uploaded. In the second meeting, we discussed the answer. Well, you know, it's a big thing. So we discussed almost 50% in the second meeting, which was actually answer meeting. Today is our third meeting. Third meeting is third meeting of answer. Yani the second meeting of answer and the third overall meeting. First meeting question की थी, second meeting answer part 1 और आज जो third meeting है answer part 2. Okay? और आज हमने इसको will cover it up. सही ना? All right, make presenter. Okay, there you go. अच्छा भाई. Today's requirement will have 3 requirements. आज जो हमारे पास 3 requirements हैं उसमें will have 3 topics actually. ठीक है? वो 3 topics क्या होंगे? The first topic is about e-marketing. और second is about the change management. मैं आपको भी पहले ही बता दूं. And the third one is about my favorite corporate governance. ठीक है? और जो मैं आपसे बात कहूं वैसे तो मैं हमेशा एसबीएल के लिए कहता हूं कि ये है वो है फलाना है दिमाग का होता है, लेकिन मुझे ये 3 रिक्वायरमेंट ऐसी लगी वो लेवल नहीं लगा मुझे, यानी जो एसबीएल का लेवल, ऑल्दो इट्स अ गुड रिक्वायरमेंट, हेल्दी रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इतनी वो जो एक एसबीएल का जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, उससे ऐसे इट्स 2 स्टेप डाउन, सही ना, नॉट 1 स्टेप, 2 स्टेप डाउन, यानी इजी है, कॉन्सेप्ट्स बस देना है, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ गुड कमर्शियल एक्यूमेंट. आपको जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, व्हाट इज ई मार्केटिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली ई मार्केटिंग गोइंग ऑन. यानी उसका लिंक इतना केस से नहीं बनता जितना यू नीड टू यू नो कनेक्टेड विद योर बिजनेस सेंस एंड कमर्शियल एक्यूमेंट. ठीक है ना. इसी तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो भी कि भाई इदारा ग्रो कर रहा है, हाउ कैन यू ब्रिंग अ चेंज. ठीक है, केस से लिंक है. I don't know, मुझे ऐसा लगता है, this is just my opinion, my feeling, कि मुझे ये जो 3 रिक्वायरमेंट है ये एसबीएल के हिसाब से 2 स्टेप डाउन लगी. तो ठीक है, that's a good news for you guys. Okay, let's look here. आज जो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, all right, here you go. It's requirement number 2 and it's part B, requirement 2 part B. Prepare briefing notes for the next board meeting. Briefing notes banane, no letter, no report, no email, nothing, just the briefing notes for the next board meeting, which recommend how e-marketing can be used to attract and retain clients for TT4Us. TT4U is the name of the business, remember, new cloud-based service. Yes, okay. It means, ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि what is actually asked. सबसे पहले तो you need to understand the question. पूछा क्या जा रहा है? It's about e-marketing. और आपको ये बात पता है कि there is, when it's about the objective, there is no difference between marketing and e-marketing. यानी traditional marketing and e-marketing मैं कहता हूँ there is no difference when it's about the objective. When it's about it's just like accounting and e-accounting, computerized accounting. So there is no difference when it's about laws, conventions, accounting concept, basis, auditing and electronic auditing. No difference in objective. Objective same रहता है, बस खेलने का तरीका, field, process, method, वो ज़ाहिर obviously 180 degree change हो जाते हैं. This time you not ask about the traditional marketing, they ask about e-marketing. कि आपने ये बताना है, यानी this is the requirement that what should be the methods जो ये नई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर रहे हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो ये इनकी नई प्रोडक्ट है, maybe with a new name also, but I don't know, it's not mentioned there, just a new product of this business TT4U company, उसकी जो नई प्रोडक्ट है उसके लिए आपने बताने methods कि वो क्या तरीकाकार होंगे, लेकिन कौन से methods. Only e-marketing, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया about the traditional marketing, no, only e-marketing methods जिससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो. रिक्वायरमेंट में दे दिया ऑब्जेक्टिव इनको क्या चाहिए. नंबर 1, they want to attract new clients, कि नया बिजनेस किस तरह हम घेरें. और नंबर 2, how can we retain existing client, क्योंकि already they have customer base. आपको याद होगा क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था, there are a lot of customers, especially the big customer, Rex investment वाली कहानी याद है. तो retain existing customers, यानी जब रिक्वायरमेंट पढ़ो तो ये पहले ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना कि भाई क्या बताना है. You need to tell them the ways, the steps, the method, whatever, ये तरीके कार बताने कौन से
e-marketing के through which they able to attract new clients and retain existing customer, क्योंकि already they have customer base लेकिन they using different products, तो उनको किस तरीके से इस cloud based service की तरफ लेके आना है। अच्छा, when you doing e-marketing or when you starting or when if you have any requirement, let's say in 2021 22 whatever नए पेपर्स में भी आए, तो आपने सबसे पहले दिमाग में रखना है जब भी ई मार्केटिंग की बात होगी तो यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड 7 P's मॉडल एंड योर 6 I's मॉडल। आपको याद है कि हमने जब हम लेक्चर दे रहे थे तो उसमें बात की थी 7 P's मॉडल एंड 6 I's, which are intelligence, interactivity, individualization, independence of location, और वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ऑल दैट। इसको दिमाग में रखते हुए चलना है। हाउ विल यू स्टार्ट योर क्वेश्चन? इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे स्टार्ट करेंगे? नो लेटर, नो ईमेल, नथिंग, जस्ट अ ब्रीफिंग नोट। I am writing as a consultant, whatever your name is, जो उसमें था Stubborn, yes, Stubby, पता नहीं, I don't know. So I am writing this notes or writing this statement or letter or whatever to tell the board the objectives of or the methods of e-marketing as TT4U launching this new product, cloud-based services, so that they can retain new existing customer and able to attract new folks. Okay, अच्छा, ये तो आपने एक फर्स्ट पैराग्राफ लिख देना, दिस इज द इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको दायरा प्रोफेशनल मार्क्स और ये सारी चीजें भी इसमें चाहिए। तो एक तो इंट्रोडक्शन हो गया कि आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट और दीज वर्ड्स और व्हाटएवर फॉर TT4U बोर्ड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, टू मेक इट सिस्टमैटिक, आप इसको 2 पैराग्राफ में करो, 2 हेडिंग में करो। एक उसने रिक्वायरमेंट में ऑब्जेक्टिव बताया, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? वो है able to attract new clients। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं how to attract new customers, यानी जो नए कस्टमर्स हैं उनको हम कैसे अट्रैक्ट करें। सही है, सबसे पहली चीज। अब यहाँ पर आपको ये बात उनको बतानी कि ऑलरेडी TT4U, क्योंकि TT4U दे आर इन बिजनेस ऑफ व्हाट, IT सर्विसेज उसी में, तो ऑलरेडी दे डूइंग ई मार्केटिंग। कैसे पता चला? वी हैव द एविडेंस इन द क्वेश्चन कि दे हैव देयर वेबसाइट, दे हैव दिस चैट बॉक्स एंड ऑल दैट। वो सारी चीजें नजर आई थी कि भाई कस्टमर्स उनके साथ ईमेल्स पे भी है, वेबसाइट भी उनकी है, उस पे भी खरीदना बेचना ये सब चल रहा है। तो पता ही चला ऑलरेडी दे डूइंग दिस ई मार्केटिंग स्टफ, यानी दे आर नॉट न्यू। क्योंकि समटाइम्स सवाल ऐसा आता है कि एक बिजनेस है, दे डूइंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नाउ दे ट्रांसफॉर्मिंग टू ई मार्केटिंग, बट दिस टाइम दे नॉट आस्किंग दिस थिंग, ऑलरेडी दे हैव ई मार्केटिंग थिंग। व्हाट आर द न्यू मेथड्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी जो नई प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हम कैसे अट्रैक्ट करें। तो सबसे अहम चीज जो हम कहेंगे वो यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू अनाउंस। अनाउंसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनाउंसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से अनाउंसमेंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ ट्वीट, ओके, अनाउंसमेंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ आप ये सब लिखोगे, कवर पिक, कवर पिक्चर। कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैं फिर आपको बता दूं, मैंने एक बच्चे का पेपर चेक किया, उसने पता क्या किया, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन द आंसर ही रोट CG, वर्किंग कैपिटल WC, 7 वो जी इस तरह व्हाटएवर, सही है ना, मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा BOD। तो पता ही चला कुछ चीजों में तो चले ही चलता है, लेकिन ये ख्याल करें, मैंने उससे पूछा कि व्हाई डिड यू राइट CG एंड ऑल दैट, उसने कहा सर मैं तो इसी तरह लिखता हूँ, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा। व्हेन आई एम टीचिंग यू और यू राइटिंग इट, ओके दैट्स फाइन, ये आपने नोट्स बना रहे हो, लेकिन व्हेन यू राइटिंग एग्जामिनेशन प्रॉपर टर्म्स पूरी लिखें। CG मींस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके, राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके लेट्स। अच्छा, अब क्या आपने क्या किया भाई, सबसे पहला तो आप ये दोगे एडवाइस कि TT4U when they launching this new product, first of all they should announce it on all their social media platforms, for example their Twitter, their LinkedIn, सही है, their Facebook, सब लिखोगे, सही है ना, Facebook पे इन सब चीजों पे इन्होंने अनाउंस करना है, प्लस एन इलेक्ट्रॉनिक बैनर, जैसे होते थे ना रेस्टोरेंट के बाहर बैनर लगे होते थे, गलियों में बैनर लगे होते थे, नाउ they need to put electronic banner on their website। सबसे पहली चीज, इससे क्या होगा, right now I am under the heading of what, attracting new clients, I am not talking about the existing clients, मैं नए clients की बात कर रहा हूँ। तो उनको अट्रैक्ट इस तरह किया जा सकता है कि सबसे पहले अनाउंसमेंट हो किस पे, on their Facebook and all that। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, वो टाइम पुराना हो गया, I remember although it was e-marketing, लेकिन वो टाइम पुराना हो गया। ये देखिए मैं ड्राइंग करके दिखा दूं, जब हम लोग क्या करते थे, पीपल यूज्ड टू गिव अस देयर कार्ड्स जिस पे उनकी वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता था, www.xyz.com एंड ऑल दैट बिग थिंग। तो हम क्या करते थे, आम आदमी कहाँ जाता था, वेबसाइट पे जाता था, ऐसे ही होता था ना। टुडे द ऑब्जेक्टिव इज सेम, but today the traffic is not coming directly to the website. Nowadays people spending time on social media,
लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। ये बात आपको बतानी होगी कि यू कैन डाइवर्ट पीपल, you can bring traffic on the website via this platform, via social media। सही है ना, यानी पता ये चला कि पहले होता था कि डायरेक्टली ट्रैफिक यहाँ आता था, लेकिन अब ट्रैफिक आता है वाया सोशल मीडिया, कि लोग दे स्पेंडिंग टाइम ऑन फेसबुक, दे लुक एट योर वीडियोस, दे लुक एट योर पोस्ट एंड देयर इज अ बटन लर्न मोर, शॉप नाउ, बाय नाउ, लर्न मोर व्हाटएवर। सही है ना, तो इसका रीड मोर, तो ये ऑप्शंस जो है ये बटन्स के साथ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है कि इफ पीपल आर कमिंग ऑन सोशल मीडिया, they can divert people, either they can come directly to the website, or what TT4 you can do, they can divert traffic from social media to their website, कि website को traffic लेके आए via links, via buttons, कि shop now, buy now, learn more and all that। see ये सारी चीजें, this is important, this is the first thing they have to do it। अच्छा, second, इसी के साथ website, they already have the website, but now when they're introducing a new product, not only I just mentioned they have to put the banner thing, plus अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात बोल दूं, जरा सुनिए। हम लोग भी जब कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो लोगों को देखा ना, व्हाट्सएप की अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर देते हैं, if they have any announcement, स्टोरीज में लगाते हैं, कवर पिक्चर चेंज कर देते हैं, जो परमानेंट कर देते हैं फॉर अ मंथ। लेट्स से इफ आई एम डूइंग दिस स्टॉक मार्केट कोर्स, तो मैंने कहा भाई ये कवर पिक्चर मेरी लग जाएगी। सही है ना, तो ये क्या है, ये फायदा होता है उस बैनर और अनाउंसमेंट का। ना already they have the website, now what second thing they can do, they can put more and detailed information about what, about the new product info, don't write info there, about new product, ये जो इनकी नई प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल, बिकॉज इफ पीपल आर कमिंग वाया सोशल मीडिया तो वहां पर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। व्हाट दे कैन डू इज दे विल गो क्लिक विजिट आवर वेबसाइट, once they are on the website, their website should be fully equipped, already website मौजूद है, लेकिन आपको पता था कस्टमर सर्वे, क्लाइंट सर्वे जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, ज़ाहिर है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। But when now you introducing a new product, it should be fully equipped हो, especially for that new product, यानी वो with a news or with some, जैसे Apple, when they launch a new phone तो वो सबसे पहले होम पेज पे वही प्रोडक्ट ब्लिंक कर रही होती है, ठीक है ना। तो this you can explain them, this is one of the method of this thing, सही ना। Then how can you bring traffic, यानी उनको कैसे लोगों को पता चलेगा कि they come on your social media or website, search engine optimization, already maybe they're doing it, but now they can do it more। अच्छा, किस तरीके से, अब इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, एक होता है पेड। मैं पेड के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये मैं पर्सनली आपको बता दूं। अगर आपने शॉर्ट टर्म में इफ यू वांट टू बी ऑन गूगल टॉप लिस्टिंग ये वो और यूट्यूब पे और इधर उधर नजर आना चाहते हैं, यू गिव देम, बिकॉज दीज कंपनीज दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सही ना, तो वो आपको क्या कर देते हैं, आपको लाइक्स दिलवा देते हैं, ये सारी चीजें, और बट दिस इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच। व्हेन TT4U, जो TT4U जो कंपनी है, when now they introducing this product and they have a long term vision, obviously when you launching a product तो आपका इरादा क्या होता है कि इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। जैसे मेरा अपना पेज है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पेज में चाहता हूँ ऑर्गेनिकली चले, फितरी तौर पे चले, यानी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग, सब कुछ उसकी जेन्युइन हो। मैं आपको बताऊं, इसकी मिसाल देता हूँ। कुछ पेजेस पे आप देखिएगा, you see 1 million followers, 1 million like, 2 million likes, but when they put a post you get 30 likes, किसी पे 20 likes, किसी पे कभी 2 likes। तो यार 1 million, वो बोलते हैं हमारे पेज पे 1 million like है, इसका मतलब they all purchase likes which are useless, क्योंकि वो रोबोट्स होते हैं, वो उन्होंने ऐसे ही बस फेसबुक को अपने पैसे दिए और उसने दिखा दिया। तो ऑल्दो पेड मार्केटिंग चलती जरूर है, पेड मार्केटिंग चलती है, लेकिन पेड फॉलोवर्स और ये सब लाना ये शॉर्ट टर्म में समझ आता है। ऑर्गेनिकली अगर आप चलोगे तो यू गेट इन लॉन्ग टर्म। मैं आपको इसकी अपनी एक प्रैक्टिकल मिसाल दे दूं। जब मेरा पेज 20,000 पे था, 20-25,000 लाइक्स पे था, सही है ना, लेकिन थे ऑर्गेनिक, रियल 25,000 लोग, सही है ना, और मेरे प्रोफाइल वगैरह के मिला के 20-25,000 और हो गए थे, सही ना, फ्रेंड्स और ये वो 2-4 प्रोफाइल के, तो मैं बोलूं 40-45,000 हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में इट वाज अबाउट पुलिस सिस्टम। आपको पता है वो वीडियो रीच की आज की डेट में शायद 4 मिलियन प्लस लोगों को, 4.2-4.3 मिलियन लोगों को रीच की, और उस पे व्यूज थे 2.2 या 3 मिलियन, इस तरह 2.2 मिलियन, आई डोंट नो। तो पता ये चला, अब कोई बोलेगा 40,000 अगर आपके फॉलोवर्स हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो होते ऑर्गेनिक शेयर, यानी लोगों को पसंद आई, लोगों ने शेयर किया। एक बंदे ने शेयर की, उसके 200 फ्रेंड, उन्होंने आगे शेयर करना शुरू की, उन्होंने आगे शेयर की, इस तरह ये है एक ऑर्गेनिक रीच। इफ यू वांट टू गो लॉन्ग रन, सही ना, लॉन्ग रन और सस्टेनेबल अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो
कि how will they do this search engine thing, search engine optimization, how will they come up on Yahoo or Google on top of it with this product. तो उसके लिए they need to write some blogs, सही ना, इनके bloggers, their own writers. Even यहाँ पर मैं एक और बड़ा अच्छा पॉइंट बताऊंगा कि they already have social media platform like Twitter and Facebook and all that, and they're introducing this product. तो उसमें होता ये है कि when companies, when they launch their new products, जब अपनी नई product launch करती है, तो जैसे मैं हूँ ना, मैं अपनी videos बनाता हूँ, कोई भी नई बात होती है तो मैं video बनाता हूँ, और they write a post and all that. So same case, their managers, maybe senior, or maybe their board of directors, they can write on social media about this new product. They can introduce this new product, say ना, via video thing or texting or किसी भी तरह. Just like Apple क्या करता है, keynote नहीं आता उसका, जब वो नया phone launch करता है तो the CEO comes up and they explain that what's this, and their collaborating partners वो सब आते हैं कि भाई ये करते हैं वो. This all they can do it with this key marketing thing on their social media platform, blogs, जिससे ये थोड़ा इस तरफ से भी grow करे organically, और plus once people are coming on your social media platform, वहां से भी फिर ये चले. ठीक है. अच्छा, next, इसी में अभी हम बात करें, we talking about attracting new people. Once they're on website, obviously they want to know about you. वो जानना चाहते हैं ना आपके बारे में, तो उसमें होना चाहिए there should be a chat box. ये बहुत जरूरी है आजकल. आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, थोड़ी देर तक उस वेबसाइट पर फौरन नीचे से ऑप्शन मिल जाता है, हाय, वो तो रोबोट होता है, हाय, दिस इज XYZ, हाउ कैन आई हेल्प यू. तो आप उससे फौरन पूछते हैं, यस आई एम लुकिंग फॉर Ford F250 व्हीकल एंड व्हाट्स द प्राइस एंड ऑल दैट. इसके अंदर दो ऑप्शन दे सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये जिसको हम कहेंगे कोई रोबोटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर द अदर पर्सन इज नॉट ह्यूमन. सही ना, यू पुट a question with those typical words, जो words आ रहे होते हैं उससे they try to give you answer once. Second thing, the second option is human interaction. बाकायदा उसमें क्या होता है कि you need to wait, like I'm waiting, I want to write or I want to talk to an agent. सही है ना, आप चैट बॉक्स में जाके उसी वक्त लिखते हो कि yes I want to talk to an agent, और समटाइम खुद ही पॉप अप हो जाता है. अब whether it's outsourcing या offshoring, वो कहीं फिलीपीन में बैठा हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में बैठा हो, doesn't matter, वो आपसे पूछता है, hi my name is John, how can I help you. अब वो रियल पर्सन होता है, and then you put your tailorized or customized question and they reply you. सही ना, इस तरह चलता है. तो ये एक chat box का option TT4U has to work, because when it's a new product and you inviting new people, attracting new clients, so when they'll come up, they will definitely ask about your company, your organization, your maybe this new product, and there's so many things they can ask. So for that, chat box is very important. और इसका एक और बहुत बड़ा benefit वो क्या होगा, इसका एक बहुत बड़ा benefit ये होगा, सबसे अहम चीजें आजकल क्या है, the most valuable asset right now is collection of data, collection of information. यानी इस वक्त information और इस वक्त data से बड़ा तो कोई asset है ही नहीं. This is the most valuable asset. Okay. अब once people are talking and chatting to you and they are visiting your website via social media, you can collect the data and information because they are your now target audience. They are interesting clients. सही ना, सबसे ज्यादा interest. For example, मैं आपको इसकी मिसाल दूं, सही ना, just look at my seriousness. When I make my video, सही ना, for example, I'm launching any course, कोई भी चीज, जैसे मेरा कोर्स मेरी प्रोडक्ट होती है, I'm launching any course. During the video, I say, this is my WhatsApp number, this is my फलाना number and all that. एक बंदा जो मुझे WhatsApp पे मैसेज करता है, तो I have to be very serious because that particular guy is so interested that he not only watched my complete video, copied my number, उसने मेरा नंबर कॉपी किया, then he saved my number because you cannot message without saving the number on WhatsApp. He saved my number, go on the WhatsApp, message me, hey sir, good morning, I am interested in your course. तो मैं समझ जाऊंगा यार ये जो फलाना बंदा है इतना इंटरेस्टेड है कि ये मेरे फेसबुक से मेरी पूरी वीडियो देख के इसने आखिर तक देखी होगी वीडियो, एंड he took my number and all that. तो ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, I just have to sell it. सही है, मुझे किसी भी तरह इसको बेचना है. तो यही काम, the TT4U can do this. Those people who are visiting the website, तो उसमें पता चल जाता है कि did he visit for the first time? Okay, this should be the message. He came here for the second time or the third time or fourth time. ये सब कुछ उनको वो बता देते हैं क्लिक्स, क्या भाई ये बंदे ने इस आईपी से इतनी दफा किया. ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि you get a data, those people coming on your website or even on your social media. Yes, let's look here. कैसे people comment, people like your page, सही ना, उससे आपको पता चल जाता है कि this particular person like my page or this particular person has commented. आप लोग बाकायदा इनकी जो टीम होती है, मार्केटिंग टीम, once you commented on any particular product or brand, they come and they inbox you.
हाँ, इनबॉक्स यू द डिटेल, सारी चीजें देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि यू गैदर द डेटा वाया फेसबुक एंड सोशल मीडिया एंड योर वेबसाइट एंड ऑल दैट, उससे आप मार्केट कर सकते हो। प्लस यू कैन ऑल्सो आस्क देम फॉर मोर पर्सनलाइज्ड और मोर कस्टमाइज्ड, क्या लिखूं, कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड टच के लिए यू कैन गिव देम a goodie, an incentive, एक इंसेंटिव आप दे सकते हो टू गेट देयर टेक्स्ट नंबर और देयर ईमेल। ये चीज ये आजकल यूएस में बहुत ज्यादा चलती है कि आप कहीं भी जाएंगे ना, अभी ऐसे मैं इसमें होऊंगा तो मुझे बोलेगा कि हे डू यू वांट अ फ्री कॉफी, फ्री स्टारबक्स कॉफी, $5 कूपन या $10 कूपन, ओके यू नीड टू डू दिस सर्वे। ओके इफ यू वांट मोर पॉइंट्स ऑन बेस्ट बाय और Amazon, ओके डू दिस सर्वे। ओके फलाना, इफ यू वांट जस्ट $10 कूपन और वाउचर, डू दिस थिंग। This way you can collect the data because these people they are interested, they're interested folks, क्योंकि तभी तो ये आ रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है, ये हम अभी पहले पे ही हैं, we talking about attracting new clients. If those new people, those who are coming in, if they already aware about the product, भाई दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक वो होंगे जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, हाँ उन्होंने क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कभी की नहीं, एक वो होंगे जो ऑलरेडी दे यूजिंग इट बट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। तो उनसे आपने पूछना है कि यस व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज यू टेकिंग फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, व्हाट्स योर एक्चुअल नीड, आपकी जरूरत क्या है, ओके वो आपको बताएंगे ये है। एंड देन ईदर यू कैन गिव देम वेलकम डिस्काउंट, कोई एक डिस्काउंट आप ऑफर दे सकते हो, परसेंटेज ऑफ कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप कर सकते हो कि भाई ओके if you switch on, let's say from AT&T to T-Mobile or Mobile to Ufone or whatever, so okay, we'll give you X% off, and plus you can try to enhance the value they're already taking from their competitor, from your competitor, from TT for your competitor, सही ना, उससे जो ये वैल्यू ले रहे हैं, ओके कि भाई यहाँ पर TT for you पे भाई हमें ये सर्विसेज मिल रही हैं, but we not getting this. Okay, are you satisfied with them? What sort of services they're providing? What type of after sales support they're providing? ये वो सब कुछ। If you can add something, कोई ऐसा goodie bag आप ऐड कर सकते हो, do it और उनको ऑफर करके you can gain them, सही है ना। इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शन भी होते हैं, let's say auto pay का ऑप्शन, okay if you do it if you come and buy this product and you put it on auto pay, will give you X dollar off every month. auto pay में फायदा ये हो जाता है कि आप वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है और हर महीने उसको पे करने की जरूरत नहीं होती, हर महीने के बाद या हर साल के बाद खुद ही आपके उसके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट विल डिडक्ट एंड विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। उससे बंदे को हर दफा डिसीजन नहीं लेना पड़ता। हम लोग खुद इन सब चीजों का शिकार है, सही है ना। कोई मैगजीन सब्सक्राइब करा लेते बोलते हैं ओके पुट इन ऑटो पे कर दिया, अब आप चलते रहते हो, तो वो साल में वो थोड़े से पैसे डिडक्ट होते हैं, नोबडी केयर्स। लेकिन अगर वो खुद ही फिर से इंफॉर्मेशन डालनी पड़े एंड अगेन यू हैव टू दे विल रिमाइंड यू हे यू आर इंटरेस्टेड अवार्ड एंड यू पे, उसके बाद मे बी यू से ओके आई डोंट वांट टू कंटिन्यू में, हो सकता है मे बी आई गो विद समथिंग एल्स। यही एक बड़ा पॉइंट है कि ऑटो पे का कोई ऑप्शन देता है तो उस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये सब ऑफर्स दे रहे हो कि गिव देम सम डिस्काउंट एंड गेट इट। इसी तरह एक ऑफर आप ये भी देते हो उनको, भूल गया, एक तो ऑटो पे का बड़ा अच्छा ऑप्शन देते हो, दूसरा यस लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन। ओके इफ यू डोंट गो 1 मंथ टू मंथ, अगर तुम 12 मंथ करा लेते हो और 3 इयर्स करा लेते हो, आई गिव यू दिस ऑफर, सही है ना। तो ये ऑफर भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से, इसी तरह एक और चीज होती है वो कहलाता है लाइट वर्जन या ट्रायल वर्जन। ये सब बातें आपको करनी है भाई। ओके इफ यू हैव एनी ट्रायल वर्जन और लाइट वर्जन ऑफर यू कैन गिव देम, ओके यूज इट, इफ यू इंटरेस्टेड कम बैक एंड देन विल प्रोसीड। इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो। मे बी यूल हैव मोर आइडियाज आप और डाल सकते हो, बट डोंट टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। नाउ हाउ टू रिटेन अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, कैसे रिटेन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। once again they already on your website, सही है ना ये बात, they already on your website, they already like your Facebook page maybe or they are already in connection with you, तो उनको तो भाई वो जो अनाउंसमेंट है that's gonna help, उनको तो फौरन पता चल जाएगा कि हाँ भाई our company, our supplier, our source TT for you, वो तो इस सबसे फायदा उठाएगा। अच्छा ये ओवरलैपिंग होगी इसमें कि भाई कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इन दोनों के लिए होंगी, ठीक है ना। इसी तरह इनके लिए आप और क्या कर सकते हो, दिमाग में रखना है बात, already you had a client survey in your question paper, आपने देखा था कि you already had a client survey with your existing clients, है ना, उनके साथ था। सवाल ये है कि जो उनके साथ उनको जो प्रॉब्लम्स थी ना, try to solve those problems here,
सही है, in this new product or when you launching this new product, try to solve the problem here, keep those problem in mind. जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि nobody respond us, here you have to be proactive, सही है ना, respond right away. यानी कैसे हो सकता है भाई, ये ऐसे हो सकता है कि इनके लिए तो कोई स्पेशल वो जो चैट बॉक्स है वो भी, या इनके लिए तो जाहिर है आपका एक अलग जिसको कहेंगे ना कम्युनिकेशन और एक रिपोर्टिंग चैनल, जो एक नेटवर्क ऐसा होता है फॉर योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कि व्हेन दे लॉग इन विद देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, उसके लिए यू हैव टू बी द टीडी फॉर यू स्टाफ, द मार्केटिंग स्टाफ, दे हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव नाउ, सही अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि डेफिनेटली दे विल हैव सो मेनी क्वेश्चन. इट्स नॉट ओनली अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द सर्विस आल्सो, व्हाट दे एक्सपेक्टिंग नाउ. तो ये चीज भी आपको देखनी होगी, यानी इनको भी ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, कम्युनिकेशन चैनल एंड ऑल दैट. इनके साथ एक और काम ये हो सकता है कि ऑलरेडी दे योर कस्टमर्स, सो इफ दे गेट दिस प्रोडक्ट तो लॉयल्टी डिस्काउंट राइट अवे इनको दो भाई, ठीक है ना. ये सारी चीजें इनको भी दी जा सकती है. फिर ऐसे ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं which will help not only your retaining existing customer but maybe the new customers. You may write those blogs by looking at the client needs. ऐसे ब्लॉग्स लिखो which targeting the client needs and how your products gonna help and satisfy those needs. तो उससे भी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कस्टमर्स हैं आपके, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर, दे ऑलरेडी ऑन दोस प्लेटफॉर्म एंड फेसबुक एंड ऑल दैट, उस पे ऑलरेडी मौजूद है. सो व्हेन दे विल सी दोस ब्लॉग्स, सो ऑब्वियसली द नीड्स आर देयर, बूस्ट होगी और सेल होगी. अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं यहाँ पर, ये आप इस कंपनी को सर्च भी कीजिएगा, मैं इसको यूज भी करता हूँ, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट. वॉलमार्ट भी यूज करता है इसको, बेस्ट बाय यूज करता है, बड़े बड़े इदारे यूज करते हैं कांस्टेंट कॉन्टैक्ट. ये क्या करती है, ये आपको लेट्स से यू हैव 1000 पीपल ईमेल एड्रेस, यू हैव द डेटा एंड इंफॉर्मेशन 1000 लोग की, ये वन क्लिक पे आपको पूरा बना देगी, डिजाइन कर देगी सारी चीजें. यू कैन पुट बटन्स इन योर ईमेल, यू विजिट वेबसाइट, अप्लाई, यू कैन एंजॉय दिस कूपन 10% ऑफ एंड व्हाटएवर, और आप वो पूरी ईमेल उठा के वन क्लिक पे 1000 लोगों को चली जाएगी. लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि once the email is done, वो शूट हो गई, वो उनके बॉक्स में चलेगी, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि how many people received the email, how many people नाम के साथ they clicked on your email, these are the number of people they clicked on the website also, उन्होंने पूरी ईमेल को पढ़ने के बाद फिर वेबसाइट को क्लिक भी किया है. ये वो बंदे हैं जिन्होंने मोबाइल पे आपकी ईमेल को खोली है. these are the people they open on website, on desktop computers, सब कुछ आपको पता चल जाता है. With the help of these CRM and customer relationship management thing and constant contact, जैसे मैंने इसकी मिसाल दी, आप क्या कर सकते हो, you can do segmenting as well. ये आपको इतना अहम एरिया बता देता है. मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 कस्टमर है, although they are my interested, my good customer, I have the information and everything. लेकिन जब मुझे पता चला कि इसमें से 200 कस्टमर ऐसे हैं, they opened my email and they clicked, उसमें से 100 कस्टमर ऐसे थे, they clicked on the website, वो बता देता है कि इस लिंक पे इस ईमेल एड्रेस से क्लिक हुआ. आपने उनके ऊपर तो भरपूर तवज्जो देनी है, क्योंकि they are not only your customer but very very interested customer, interested audience. They not only open the email, they open the website, they open this button, this button, this button, सब पे क्लिक किया, बस अब उन पे आप काम करें and you can seal the deal. उसको आप बिल्कुल you can sell it. तो ये हो सकता है, ये आपको इस तरह की भी हेल्प हो सकती है with this e-marketing. One of the method is when you have the information, already you have the information of your existing client, तो उसमें से आप segmenting करके कि okay, these clients they belong to falana demographic region, they belong to falana age, they belong to big size company or small size like Rex investment and all that. इस तरह आपने ब्रेकअप करा, शुरू कर दी ईमेल और उनसे काम लेगी. ठीक है, पहली दफा इस तरह ईमेल की, सेकंड टाइम द सब्जेक्ट लाइन इज वेरी डिफरेंट, ओके, क्लिक नाउ एंड गेट 20% ऑफ, थर्ड टाइम कुछ और किया, ओके, फ्री डिलीवरी, ये सारी चीजें जो कर रहे होते हैं ना, खैर इनकी तो प्रोडक्ट डिफरेंट है. ऑलराइट, तो इसको जरूर सर्च करना, कांस्टेंट कांटेक्ट, एंड दे आल्सो हैव द लाइट वर्जन, वो आपको लाइट वर्जन फ्री में देंगे और आप करके देखना अपने फ्रेंड्स को या मे बी योर कोलीग्स एंड ऑल दैट. ट्राई. ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे. इसमें जो प्रोफेशनल मार्क्स थे वो ऑब्वियसली कमर्शियल एक्यूमेन के थे. ठीक है, क्योंकि व्हेन यू डूइंग अ मार्केटिंग यू एक्चुअली टॉक अबाउट द नंबर्स. ऑलराइट, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू प्रिपेयर एन ईमेल. अब आपको ईमेल लिखनी है. इट्स वेरी सिंपल. टू प्रिपेयर एन ईमेल फॉर द सीईओ, टू सीईओ फ्रॉम यू, डेट, सब्जेक्ट लाइन. प्रिपेयर एन ईमेल फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वही ईमेल के आखिर में
if anything else, और starting में I'm writing this email as per our telephonic conversation या whatever जो है सही है ना, और बाकी आपने पूरा आंसर लिखना है। एंड में yours sincerely my name, सही है ना, if anything I can help you with, और ये वो आखिर का, यानी this is just a presentation of email. Prepare an email for the CEO which advises her on the responsibilities and activities involved in preparing for and implementing the transformation of TT4U effectively. मैंने आपसे कहा change management। दूसरा क्या है, prepare a letter to all employees which will be signed by CEO। देखिए दो बातें, दोनों में ऑडियंस को समझो। पहला जो लेटर होगा, पहली जो ईमेल आप लिख रहे हो वो किसके लिए लिख रहे हो, फॉर द CEO, ठीक है, यानी यू आर द कंसल्टेंट, व्हाटएवर योर नेम इज, देख लेना वो, ये है रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो लिखा भी रहे हो, लेकिन उसमें टोन ऐसी होगी एज इफ CEO इज राइटिंग टू ऑल द एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज को लिख रहे हैं, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी द पर्सन इन पोजीशन अथॉरिटी राइटिंग टू एम्प्लॉइज। तो क्या करना है, प्रिपेयर एन ईमेल फॉर द CEO जिसमें उसको क्या बतानी है अपने, कि भाई ये जो तुम ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंटल, जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एंड इंक्रीमेंटल चेंज, व्हेन यू टॉक अबाउट इंक्रीमेंटल चेंज, small change, sometimes unnoticeable change. When you talk about the transformation, the big change. I'm not talking about revolution, evolution. I'm talking about big and small change. Okay, तो यहाँ पर बात हो रही है big transformation की, और आपसे कहा जा रहा है as a consultant that you advise the CEO, the chief executive officer, the managing director, that what are duties and responsibilities, कि उसको क्या क्या challenges होंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी when bringing a change in the organization in TT4U, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, prepare a letter to all employees which will be signed by the CEO, क्या करेगा, explaining the benefits of implementing the new MIO-BED approach, याद आ गया वो mnemonic, for TT4U and its employees. Okay, the main changes to the team structure and behavior below board level which the new MIO-BED approach will require. दूसरे में आपने लेटर लिखना है एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉय को बताना है, उनको लॉलीपॉप देना है कि तुम्हें क्या फायदा होगा, TT4U को क्या फायदा होगा। आपको जरा समझना है कि आपने एज अ CEO you need to explain to your employees that we bringing a change in the organization and this change, पहले मार्क्स आपको इस बात के मिलेंगे, how it's gonna benefit to employees, कि employees तुम लोग को क्या बेनिफिट होगा इस चेंज से, इस इदारे को क्या बेनिफिट होगा, और किस तरीके से ये जो चेंज हम ला रहे हैं इससे हमारे इदारे में जो हमारे टीम्स और इन सब में कैसे चेंज आएगा हमारे बिहेवियर में, ठीक है ना। द मेन चेंजेस टू द टीम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ओके, नाउ लेट्स लुक हियर। बस लेकिन द CEO believes that the TT4U's current structure will have to change if TT4U is to introduce the new MIO-BED approach to client relationship successfully. Okay, the chief executive officer knows that she must take ownership of the transformation. That's a good sign of leadership. She feels, however, that she needs guidance on the transformation process and how she should lead this process, including communication, the need for change. Easy, very easy. Hold on. Okay, let's look here. देखिए ये जो पूरा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट चेंज। सबसे पहली तो बात ये समझ लें, इट्स अबाउट द चेंज, और चेंज में भी कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ हाउ, ईमेल की फॉर्मेटिंग हो गई, सही ना। हाउ एज अ CEO, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CEO, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन हु इज इन पोजीशन to bring a change in the organization, especially when you talk about the big change. And देखिए आपको एक होता है चेंज लाना और एक होता है इफेक्टिव चेंज लाना। इफेक्टिव चेंज का मतलब क्या है कि bringing a change with object which helps you in achieving the objective, वरना फायदा ही नहीं। आप चेंज ले आए, तब्दीली ले आए, लेकिन तब्दीली का जो मकसद था वो अचीव नहीं हुआ। तो we need to bring a change, उसने कहा ना कि we need to bring a change in the organization, we need effective change, हमें effective change चाहिए कि जिससे हमारे objectives अचीव हो। Now as a CEO, what are your responsibilities? The first thing is she already had, अच्छा ये he or she का जरा ख्याल रख लेना, वरना बोलेगा कि ये गलती करती, क्योंकि इसमें CEO जो है वो खातून है, ठीक है ना। तो she already had in mind what the need of change, the desire of change, तो वो तो दिमाग में है। तो ये एक रिपीटेशन वाली बात हो जाएगी, बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड द नीड फॉर चेंज, दैट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है ना। तो ये बात नहीं करना आप उसके ईमेल का जवाब दे रहे हो, आपने उसको ये जवाब देना, यानी उसने आपसे पहले सवाल पूछा था कि ओके दिस इज द चेंज, दिस इज MIO-BED अप्रोच वी ब्रिंगिंग,
and I want your advices as a consultant, that what would be my responsibility and what are the challenges in terms of communication, in terms of implementation, in terms of planning. What would be the challenges or what are my responsibilities in introducing the change? सही है ना? अब आप उसको बोले first of all you should think about. मैं तो पहले फैसला कर चुकी हूँ, तो ये गलत बात होगी, इसमें यूं समझेंगे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बात पहले हो चुकी है। ये ऐसे ही होता है जैसे ऑडिट के पेपर में बच्चे करते हैं कि वो सवाल में लिखा हुआ होता है कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर अबाउट द डेप्रिसिएशन और व्हाटएवर, एंड मैनेजमेंट हैज सेड दैट वी आर नॉट we don't agree on this providing the disclosure or providing this or accounting for this particular thing. और आप नीचे जाके आंसर में फिर लिखते हो I will talk to the management and I'll ask them what. सवाल में उसने कह दिया कि the management has already disagreed, they're not going to change it, खत्म, they're not going to provide the disclosure, that's it. You tell me the impact on audit report. बात साफ है। अगर आप वही चीज को फिर लिखना शुरू करेंगे और फिर से जैसे, तो इसका मतलब you're not reading the question। यहाँ पर भी यही बात, ये वाला स्टेप नहीं लिख सकता कि first of all you think of desire, no, that need, the desire, the change, everything is in mind. Now how to introduce it? So first of all, very important is the communication. The communication thing in change is very important. Communication या जो communication जो plan वो बड़ा important है, especially when you introducing a big change. You need to gain commitment from stakeholders. आपको अपने stakeholders से commitment लेना होगा, उनका commitment gain करना होगा, यानी मैं इसके लिए एक term use करूँ, you need to sell it to the stakeholders. अब ये बात आप लिखोगे तो ये बात एक जनरल बात होगी, इसके आगे आपको डिटेल जाना होगा कि what sort of stakeholders we talking about. सही ना, जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो कौन से स्टेकहोल्डर, आप देखिए ऑलरेडी इस बात का शेयर होल्डर से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो वैसे ही चाहते हैं ग्रोथ की बात, सही ना, और शेयर होल्डर हमारे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो हम ये बात नहीं करेंगे. We need to talk about the important internal stakeholders. For example, people in position, your board of directors, हाँ, जो CEO के peer workers हैं, उनका, हाँ, या जो आपके जो जिसके लिए I use this term C-suite, ठीक है ना, उनको first of all you need to gain the commitment, you need to sell it to the important senior management, important stakeholders. सिर्फ stakeholder ही नहीं, important stakeholders, उनको बेचना ये बहुत जरूरी होगा. प्लस वो लोग जो रेलिवेंट होंगे इसके, फॉर एग्जांपल जो हम दूसरे लेटर में भी बात भी करेंगे, एम्प्लॉइज एंड ऑल दैट, ओके, उनसे कमिटमेंट गेन करना बहुत जरूरी होगा. बिकॉज इफ यू ब्रिंगिंग अ चेंज एंड यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, व्हेन यू ब्रिंग, जरा तवज्जो से, व्हेन यू ब्रिंग an incremental change, you get little resistance, or sometimes it's no resistance, क्योंकि छोटा change होता है तो इतना मसला नहीं होता. But now when you introducing this Neomed approach, जो एक पूरी client relationship जिसमें आपने पूरा उसका mnemonic पढ़ा, कि उसमें तो हर एरिया को वो हिट करेगा, है ना, वो तो इनके बिहेवियर को बीट करेगा, कम्युनिकेशन को बीट करेगा, मिशन उसके साथ कैसे लिंक अप होगा, तो पता चले तो सारा सब कुछ, ये स्ट्रेटजी पूरी डिफरेंट हो रही है. तो अब यहाँ पर आपको बात करनी है कि व्हेन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, there is a possibility of what? Resistance maybe at the senior level, maybe at junior management employee level, हर लेवल पे ये आ सकती है. तो एक सबसे पहली बात तो यही है कि भाई जो कम्युनिकेशन होगी, this is very important. सही है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें. फिर they need to do this involvement thing, इस पे बात करनी होगी. No involvement, no commitment. Whenever you bring a change without any involvement, तो वो कौन सी अप्रोच हो जाती है? वो अप्रोच हो जाती है coercive approach. और अगर आप यहाँ पर coercive approach लेके आए तो you will have big resistance, हाँ ना, बड़ी resistance face करनी होगी. तो you need to engage और involve करना होगा आपको अपने relevant stakeholders को, तो उसमें आपके employees हो गए, सारी चीजें. हाँ, इससे क्या होगा? इससे brainstorming होगी, yet maybe more alternatives of introducing the change. हाँ, ज्यादा alternatives आपके पास होंगे. Resistance will go down, resistance कम होगी, because they will feel the, देखो अब यहाँ पर एक term, they will feel the ownership of the change. जो भी आपके stakeholders होंगे, they should not feel that you're gonna impose it. No. They should become the owner of this change. सही है ना, वो इस change के owner. All right.
समझे भाई? उनको ये फील हो कि दे आर द ओनर्स, यानी रेजिस्टेंस कम हो, ऑल्टरनेटिव्स आपको ज्यादा मिले, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अच्छा, इसको कॉपी के लिए तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। अगर आपको याद हो, एक मॉडल मैकेंजी 7S, ये आपके कोर्स में 7S मॉडल, ऑल्दो आपका एग्जामिनर जो है वो आपको नाम से नहीं देता कि भाई मैं ये नाम लिख के दे रहा हूँ, मैकेंजी 7S मॉडल, रिमेंबर 7S फैक्टर्स, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि when you bring a change in any of the hard factor, let's say strategy, structure or system or whatever, say na, it has a knock-on effect on other aspects. यानी आपने यहाँ पर as a consultant you need to explain to the CEO that if you bring a change, देखो वो change किस में ला रहे हैं? बिजनेस की अप्रोच में चेंज ला रहे हैं ना, पूरे बिजनेस अप्रोच चेंज हो रही है। तो जब वो बाकायदा इस चीज में चेंज ला रहे हैं तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट विल हैव अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल। इस बात को जरा समझे। मिसाल के तौर पर जब आप स्टाफ को चेंज करते हो, लेट्स से यू चेंज सीईओ ऑफ एनी कंपनी, किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चेंज करें, तो ऑब्वियसली स्टाफ चेंज हुआ तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी तो चेंज होगा, कल्चर पे भी इफेक्ट आएगा। जब आप स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वेल। स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, लोगों की मोटिवेशन पे इफेक्ट आएगा, ये सब। तो ये एक बड़ी अहम बात आपने बताई है उसको कि व्हेन मिस सीईओ, chairperson or whatever, when you introducing a change in this transformation thing and this approach, keep this thing in mind that you will have a knock-on effect on other factors as well. For example, you need to keep in mind the culture of TT for you. नाम से culture of TT for you, कि किस तरीके से, what are your values and beliefs and how it's gonna absorb it, वो उसको कैसे absorb करेगा। current existing systems, existing structure जिसमें ये चेंज की बात कर रहे हैं, योर स्टाफ, स्पेशली रेलेवेंट स्टाफ, रेलेवेंट इंपॉर्टेंट स्टाफ, इन सब चीजों को भी उसने दिमाग में रखना है इफ दे वांट टू ब्रिंग एन इफेक्टिव चेंज। अगर इफेक्टिव चेंज लाना है तो इन तमाम फैक्टर्स को भी दिमाग में रख के चलना होगा, ठीक है। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम समझाना ये चाह रहे हैं कि उसने कहा कि मुझे बताओ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यू नीड टू एक्सप्लेन देम द बेनिफिट्स एंड ऑल दैट। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी योर ओन लीडरशिप, यानी आपका जो अप्रोच होगी इट शुड नॉट बी द कर्सिव अप्रोच, इट शुड बी अडैप्टिव अप्रोच, विद सम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल दैट। अडैप्टिव अप्रोच के साथ यू नीड टू गो। फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइम फ्रेम। If you go very fast, what will happen? You get more resistance, क्योंकि जितना आप यहाँ देखिए ये चीजें, एक होता है स्कोप, एक होती है स्पीड ऑफ चेंज, और एक होता है स्टाइल ऑफ चेंज। तीनों पे बात करना। स्कोप तो हमें पता है कि द एक्सटेंट इज ह्यूज, क्योंकि दे टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, कि पूरी मियोबैड अप्रोच जो वो इंट्रोड्यूस हो रही है। जितना बड़ा स्कोप होगा उतना चांसेस हैं कि लोग इतना इजीली उसको अडॉप्ट ना कर सके, दे नीड टाइम। दूसरा, what is the pace? What is the pace of the change? Greater the speed, chances are you see more resistance. जितना स्पीडी होगा काम, जितना पेस ज्यादा होगा, उतनी चांसेस है आप उसको समझाओगे कि रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगी और जल्दी के काम में गलतियां भी होती हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनइफेक्टिवनेस, ठीक है। तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी इनइफेक्टिवनेस के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम टू कंसीडर द अल्टरनेटिव, सही ना। अब लोग यहाँ पे ठीक है ये लेट्स मूव ऑन, ठीक है, तो उसमें इनइफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी, एंड व्हेन यू गो विद हाई स्पीड ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। एंड द थर्ड थिंग इज फॉर द स्टाइल। स्टाइल क्या भाई? स्टाइल से मुराद ये कि वेदर यू गोना अडॉप्ट डेमोक्रेटिक स्टाइल और ऑटोक्रेटिक स्टाइल, यानी जिसको मैं कह रहा हूँ कर्सिव स्टाइल या अडैप्टिव स्टाइल। तो जितना अडैप्टिव स्टाइल होगा सीईओ का, जो आपने एक्सप्लेन करना है उसको, उतना क्या होगा, कमिटमेंट ज्यादा आएगा, सही ना। ज्यादा कमिटमेंट गेन कर सकोगे, रेजिस्टेंस कम होगी। सी व्हेन यू सी दिस, ये कहते हैं ना सीज जो है इसमें चेंज में, एक है कम्युनिकेशन। इफ द चेंज इज कम्युनिकेटेड प्रॉपर्ली इन अ गुड मैनर टू द रेलेवेंट स्टेक होल्डर, उनको कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, यू विल गेट गुड कमिटमेंट आपको अच्छा मिलेगा, प्लस हेल्दी कोऑर्डिनेशन होगा,
ऐसा ना हो चेंज में ये बड़ा मसला होता है कि एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। ये बताना होगा आप इसको कि व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज, व्हेन यू इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज, you need to set the timetable and it has to be communicated to everyone कि भाई from now onwards या after 3 months, जैसे लॉ में चेंज आता है कि भाई हम इस तरीके से चेंज ला रहे हैं and on this particular date and time we'll have our change implemented। तो यहाँ पर आपको जब आप when you have good communication, not only you get the commitment सिर्फ नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ you'll have healthy coordination between the teams and the groups and the departments and all that। उनके बीच में coordination भी अच्छा होगा, और जब ये सब चीजें ज्यादा होंगी तो C for कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो, डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है ना। तो इस पे भी आपने फोकस करवाना है इन द फर्स्ट ईमेल कि व्हाट आर योर रिस्पांसिबिलिटीज, एडवाइस क्या दोगे भाई, क्या जिम्मेदारी है सब कि एज अ लीडर व्हेन यू आर टेकिंग दिस एज एन ओनर, उसको लेके चल रही हो मोहतरमा, तो कम्युनिकेशन भी, कमिटमेंट भी, इन्वॉल्वमेंट भी, योर ओन स्टाइल, एवरीथिंग, बिकॉज यू ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं एक और चीज भी थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है इंक्रीमेंटल, ठीक है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है इंक्रीमेंटल चेंज, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ बात करनी है, जब आप स्पीड की बात करोगे ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा रेवोल्यूशन और एक ऑप्शन आपके पास होगा एवोल्यूशनरी चेंज, स्लो। तो यहाँ पर हम एडवाइस ये करेंगे कि भाई ऐसे चेंज लाओ, इफ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो चेंज है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, बट इट शुड बी विद दिस एवोल्यूशन थिंग, ये एवोल्यूशन के साथ चले, ठीक है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली। क्योंकि अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को रेवोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर दिया, इट विल बी अ बिग बैंग। अच्छा, कहीं और एग्जामिनेशन में भी सवाल आता है ना एसपीएल में से कोई कल्चरल चेंज का सवाल या इस तरह है, तो उसमें भी ख्याल करना है कि बिकॉज इट्स अ बिग चेंज, ट्राई टू गो स्लोली, कि पीसेस में किसी तरह चेंज लाए, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट आपने उसको एडवाइस करनी ना। सेकंड जो आपका लेटर है वो सीईओ इज राइटिंग टू द एम्प्लॉय। अब यहाँ पर जरा बात को समझे, देखिए आपको अपनी कम्युनिकेशन ऐसी रखनी होगी, जब आप चेंज लेके आते हो, कीप दिस थिंग इन माइंड, इसको बिल्कुल दिमाग में रखो, ये मैं आपको समझा दूं पहले, ताकि आपने उसको जब आपने लेटर लिखना है तो आपने ऐसे नहीं लिखना कि आपने उसको पहले समझाने नहीं, यू जस्ट राइट द लेटर एज इफ यू आर द सीईओ। आप सीईओ हैं, you are bringing a change, you have so much responsibilities, you're bringing a change, you talking directly to your kids, to your employees। अब जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो बात थोड़ी हम उनको बताते हैं, हम तो उनके सामने डायरेक्ट जैसे बात करनी है, दिस इज आवर होमवर्क। मैं पहले आपको आपका होमवर्क बता दूं कि आपका होमवर्क क्या है। सुनिए, जब आपको पता है, जब आप चेंज लेके आ रहे हैं, when you're talking to the employees and you know they are the people who will actually fight on the ground, यानी ये वो बंदे हैं जो they are actually implementing it, ठीक है ना, यही। और आपको पता है your employees are important stakeholder, तो आपकी जो शुरुआत होगी, समझे इसको, मैं यहाँ पर एक टर्म यूज करना चाहता हूँ, सैंडविच अप्रोच। This is very important approach when you're talking to your employees, or when you're giving feedback actually, or when you're announcing anything, when you introducing anything, or when you're giving instructions, or sometimes when you have to say some bad news. So change कोई इतनी good news नहीं होती for the employees, because they're already getting the salary and they're fine, they're comfortable with their practices, with their norms। इस बात को अगर समझे कि यार एक जॉब चली आ रही है, एक तरीके से काम कर रहे हैं, and now this CEO is saying that we need to bring a transformation of 180-degree change, बिल्कुल नई अप्रोच के साथ हमें काम करना है। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि when you start this letter, when you start this email, you have to be very positive, सही ना, आपको बिल्कुल पॉजिटिव बात करनी है कि I am my name CEO, whatever जो उसका नाम है, I am writing or I am talking to you on behalf of TT for you। मैं आपके साथ किस बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने उसको बताना है कि भाई मैं आपसे, यानी आई एम योर सीईओ, good morning, yeah, good evening, audience, you're my employees, my friends, and I'm writing this letter on behalf of the board of directors, or on behalf of TT4U company के behalf पे लिख रहा हूँ, as we introducing a new business approach, एक business approach MIOBAD, जो भी उसके पूरी डिटेल लिखने की जरूरत है, only MIOBAD, that's it in answer, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूरा उसको दिया।
Mirchawala approach. And let me tell you, and I'm so excited to announce it, and I'm so excited to talk to you. उनसे इस तरह बात करनी है positive होके, because you are a very important stakeholders of our organization, and without यानी उनको importance भी देनी है. देखो ये चीजें ये आपने लिखनी नहीं है उसके अंदर, ये आपने इसी तरह बात करनी है. Okay, I'm writing this on behalf of this. We're introducing. I'm so excited to announce this in front of our major stakeholders, our employees, a backbone of the organization. And I know without your contribution, this will be a big flop. Okay, इस तरीके से बात करनी है, सही है ना, कि मुझे पता है कि I want to bring an effective change or effective successful implementation of this Mirchawala. Don't say change. This Mirchawala approach. Without you, this dream can't be fulfilled. सही है ना, इस तरीके से आपने पहला पैराग्राफ करना है. This is a sandwich approach कि आपने पॉजिटिव होके शुरू किया और उनको उनकी इंपॉर्टेंस दिलाई. अब उसके बाद आपने उनको बताना है कि भाई तुम्हें इससे क्या बेनिफिट होगा, सही है ना, और हमारे TT4U को इसमें क्या बेनिफिट होगा, यही पूछा ना उसने. How will they enjoy the benefit? How the organization will enjoy it, and what sort of change will have in our behavior and our team structure and all that. क्या क्या बातें बतानी है आपने उनको. First of all, आपने बताना है कि okay, I have this in mind and we have this approach which we put in front of you, and we need your communication, we need your feedback on this. सही है ना, कि I'm explaining you this Mirchawala approach which will be implementing on falana date or whatever, but I need your guidance. सही है ना, यानी अब देखो क्या किया, you actually engaging them. इस लेटर में आप उनको engage कर रहे हो. I need your feedback. ये बात आप आखिर में भी एंड में भी करोगे कि if you have any concern, if you have any question, if you have any feedback, I am ready to have it. सही है ना, तो ये बात आप आखिर में भी करोगे जब उनको sincerely और truly और faithfully और CEO करोगे, तब भी आप आखिर में ही बात करोगे, लेकिन शुरू में आपने बात करनी है. ठीक है, ओके, ऑलराइट. तो ये आपने कर दिया. अच्छा, उसके बाद आपने उनको क्या बोलना है कि भाई इनको क्या बेनिफिट होगा. बोला फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी एंजॉय. देखो जब भी आप चेंज किसी के सामने रखते हो ना, तो बड़ी अहम बात ये होती है कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इट. लाइक व्हाट साइड ऑफ द चेंज यू शोइंग. क्योंकि एक चेंज की होती है बुरी साइड और एक चेंज की होती है अच्छी साइड. आपने उनको अच्छी वाली साइड दिखानी, बुरी साइड नहीं दिखानी. ये इसी मार्क्स के तो इसी के तो पेपर वो मार्क्स है, और यही प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिस व्हाट यू डू. इफ यू आर द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने एम्प्लॉइज को ये तो बताते हो कि यार अब जो हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, इससे दीज आर द बेनिफिट्स यू विल बी एंजॉयिंग, और इफ यू ब्रिंग अ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यू विल बी एंजॉयिंग दिस. ठीक है, तो आपने इनको भी ये बताना है पॉजिटिव साइड ऑफ द चेंज, दैट if we bring this new Mirchawala approach, not only will get new client, हमें नए client भी मिलेंगे, we'll have more customer satisfaction, we'll satisfy existing client, और फिर उनको बताना है कि what is the importance of customers, because not only our employees, you guys are my important stakeholder, but at the same time it is our mission, it is our objective from top to bottom, ऊपर से लेके नीचे तक, we are here to serve our customers. With this approach we'll have positive and more customer satisfaction. ये वाली बात उनको बतानी है. फिर उनको बताना है कि when we'll adopting this approach, this will help you in getting new skills. ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मैं आपसे बात करता हूँ कि आपके skills enhance होंगे उससे. देखो लोगों की एक बहुत बड़ी ये नीड होती है ना कि जो उनकी CV, उनका पोर्टफोलियो है वो enhance होगा. तो not only you will get the chance of learning, training and all that, it will enhance your CV and your portfolio as well. सही है ना, आप enjoy करोगे उसको सीख. अच्छा, फिर आपने और उनको क्या बताना है कि इससे ट्रेनिंग, यस, मोर रिवॉर्ड्स. कि बोला इस अप्रोच को when if we adopt this approach, if you guys adopt this approach and if we successfully implement it, it will not only help you in getting the training and all that, but at the same time learning new और ये सब हो गया, उसके साथ साथ you will get more rewards, कि तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेंगे इससे. ठीक है ना, लोगों को लालच तो चाहिए ना, otherwise they're not going to implement the change, वरना तो रेजिस्ट ही करेंगे. तो उनको रिवॉर्ड का लॉलीपॉप भी इसमें दिया जाएगा. दिस इज ट्रू लीडरशिप व्हाट यू डूइंग, कि आप उनको किसी तरह एंगेज भी कर रहे हो, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी दे रहे हो और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की भी बातें कर रहे हो कि भाई यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन, you'll have more training, growth opportunities and all that. फिर आपने इसमें एक बड़ी अहम बात करनी है कि देखो इदारे को इससे क्या बेनिफिट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन विद दिस अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन जरा गौर से सुनो, our organization will grow. We need growth this time. Why? Because we're gonna listed on our main stock exchange. जो क्वेश्चन में था, स्टॉक एक्सचेंज पे हम लिस्टेड होंगे. We'll have more revenues, more growth, more opportunities. और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आप लोग भी अपने दिमाग में रखें. When organization grows, employees grows, manager grows. ये बताना है कि when organization becomes smart, employees become smart. सही ना? When organization get more opportunities, you get opportunities. भाई जब इदारा एंजॉय करेगा, जब इदारे के बाद ऑप्शन आएंगे,
who's going to work? You will be working, you will get more overtime, you will get more promotion, more autonomy and all that. अच्छा, ये वाला point भी इसमें आप लिखेंगे कि not only you'll be getting the training and reward and all that, you'll get empowerment, कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा empowerment मिलेगी, यानी ये तुम्हारे behavior में change आएगा. You'll have more authority, more freedom to take decision, more freedom to take new job will be enriched. ये वाली term आप कर सकते हो कि तुम्हारी job enrich होगी. It's not only enlargement, it is enrichment. कि उसी job के अंदर you'll have more authority and more autonomy and more empowerment. ठीक है, और ये वाली बात फिर TT4U को बेनिफिट क्या होगा कि उसकी ग्रोथ होगी, शेयर होल्डर एंजॉय करेंगे, ऑल स्टेक होल्डर्स स्पेशली एम्प्लॉइज, बिकॉज व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद दिस मियोबेड अप्रोच, ज्यादा क्लाइंट आएंगे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट वो रिटेन होंगे, न्यू क्लाइंट आएंगे, all these benefits will go major to what? To the employees. जो employees हैं उनको जाएंगे, यानी आप बताओगे will be achieving the dual objectives. ये टर्म आप यूज करोगे, ओके? Not only TT4 you will go smart, you'll be getting smarter as well. See, दोनों साथ enjoy करेंगे. ये कुछ बातें करनी है, फिर आपने ये भी बताना है कि भाई how this team structure and organization structure, उससे आपको क्या benefit होगा कि once again you'll have more open communication होगी, more feedback, new ideas, एक दूसरे से आप सीखोगे with this matrix structure approach, उससे आप ज्यादा सीखोगे. ये सारी चीजें आपने बतानी उसमें, सही है ना? यानी देखिए ये असल में हो क्या रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये ऐसे हैं कि थोड़े जेनरिक सवाल है तीनों, कि इसके अंदर जितना ज्यादा आपको चेंज के मुतालिक आता होगा और टैक्टिक्स आते होंगे चेंज को इंट्रोड्यूस करने के, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे इतनी बात नहीं की, लेकिन हम तो बस एक मियोबेड अप्रोच लेके आना चाह रहे हैं. तो उस अप्रोच में मेरी क्या जिम्मेदारी होगी एज अ सीईओ कि मुझे क्या करना होगा व्हेन एवर एनी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कम्स इन. इन्होंने मियोबेड अप्रोच किया, could be anything else, सही, कुछ भी हो सकता था. तो आपसे अगर वैसे भी कहीं ये सवाल ऐसा है कि it could be a replica of any other question, any other attempt, 2021, 22 कभी भी attempt में हो सकता है. तो आप as a CEO आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है when you put a change. और दूसरे में ये जो अभी वाले में वो आपसे क्या कह रहे हैं, how you talk to your employees, कि कैसे जब आप चेंज इंट्रोड्यूस करते हो तो कैसे उनको लॉलीपॉप देते हो, सही है, कम्युनिकेट उनसे कैसे करते हो. तो इसी तरह शुरू करते हो, उनको फीडबैक देते हो, उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताते हो, क्या यार तुम लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट. यानी अल्टीमेटली आपने इस लेटर में क्या कहना है कि यस वी आर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, वी आर नॉट आस्किंग यू दैट do we go on or not, सही है, ये बात हम आपसे नहीं पूछ रहे. We are implementing the change, but you are very important for us. You will be implementing the change. You will be giving us the feedback. I'm not going to be an autocratic leader. मैं तुमसे ही सब सुनूंगा, तुम ही इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें ही फायदा होगा चेंज का, तुम्हें ही रिवॉर्ड भी मिलेंगे, तुम्हें ही ट्रेनिंग मिलेगी, मोर स्किल्स, मोर एनहांसमेंट और मोर कस्टमर्स, मोर नंबर्स, मोर रेवेन्यू, स्टॉक मार्केट, ये वो सब कुछ सब करके सारा फायदा तुम्हारा है और जो इदारे का भी फायदा है उसमें भी, क्योंकि यू आर एक्चुअली नॉट राइटिंग एन ईमेल टू ऑर्गेनाइजेशन, यू राइटिंग एन ईमेल टू एम्प्लॉइज. तो इदारे के भी जो बेनिफिट हो ना वो भी घूम के एम्प्लॉय में आने चाहिए कि ओके सी. एक तो तरीका ये होता है कि आप सिर्फ इदारे के बेनिफिट बताते हैं और वो सारे बेनिफिट जो है इज गोइंग टुवर्ड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द शेयर होल्डर, कि देखो यही सारे फायदे होंगे, शेयर एसेट्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये होगा. एम्प्लॉय बोलेंगे हमें क्या फायदा होगा, then I accept the change. बोलेंगे यार इससे तो फायदा ये हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की शेयर प्राइस बढ़ी, ना तो शेयर होल्डर, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट बढ़ रहे हैं, वी डोंट गेट इट, हमारे एंड में कोई हिस्सा तो नहीं मिलेगा, हमें क्या बेनिफिट होगा. इन शॉर्ट टर्म एंड इन लॉन्ग टर्म दोनों अप्रोच के साथ आपने बात करनी है. देखो इस तरह, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द कम्युनिकेशन स्टाइल्स वी कैन नो सैंडविच अप्रोच. ऑलराइट, देखते हैं. और आपकी एक रिक्वायरमेंट है, the chairman wants, it's not the CEO now, the chairman wants the board to be briefed on aspect of corporate governance which need to change if the new miobed approach to client relationship is to be introduced successfully. यानी आप इस assumption से चलना है कि you actually introduced a change, सही है ना, कि change आ गया, transformation, big change, इदारा going high. Once again, prepare briefing notes और board को अपने advice करने. Now you're not talking only to the CEO, you're talking to the board. फुल बोर्ड को आप एडवाइस कर रहे हो that on the changes required to the membership of the board. Yes, यानी जो ऑलरेडी जो आपका बोर्ड है ना, ऑलरेडी जो आपका बोर्ड है, कैसा है ऑलरेडी बोर्ड, ये देखिए ऑलरेडी जो बोर्ड है, इफ यू गो इन द क्वेश्चन पेपर और बिल्कुल राइट ऑन फर्स्ट पेज, तो उसमें चेयरमैन है which is a non executive director appointed 2 years ago. इस तरह एक चेयरमैन है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में. यू हैव द सीईओ जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर है, एक सीईओ है और ये सीएम है, चेयरमैन है,
और सर्विस डायरेक्टर है SD, जो कि टीम को भी चला रहा है। एक MD है मार्केटिंग डायरेक्टर, वो भी एक टीम को चला रहा है, नीचे बिजनेस भी कर रहा है। फिर एक IT डायरेक्टर है, वो भी बिजनेस को चला रहा है, पब्लिक सेक्टर बिजनेस को। फाइनेंस डायरेक्टर है, गुड बॉय। एंड देन यू हैव जस्ट वन NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भाई ये आपसे पूछा उसने क्या, आपसे उसने पूछा है, दिस इज द रिक्वायरमेंट, लेट्स लुक हियर। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स व्हिच एडवाइज द बोर्ड ऑन द चेंजेस रिक्वायर्ड। यानी आप एज अ कंसल्टेंट उसको कहते हो कि ओके दिस इज द बोर्ड यू हैव, but I think you need to change, you need to bring a change in your board composition। हाँ ये ना मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड, कि भाई इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उसमें हमें कुछ, वो जो होता है ना, वो पार्लियामेंट में जो होता है, वो मिनिस्ट्रीज में होता है, क्या कहते हैं वो, उथल पथल क्या होता है वो, कि भाई यहाँ से इससे भी ज्यादा चाहिए, इसको दी, इसको ये दी, इसकी जिम्मेदारियां कम की, 4 नए वजीर और ले, ये दैट्स द थिंग। द मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड आई वांट, in this current scenario, in this current context, I'm the consultant and I am advising you that you need to change the membership of the board, and then और क्या चाहिए, and the information supplied to the board, किस किस्म की information board को मिले to reflect TT4U's developing business need and to make TT4U more responsive to the client need। Yes, कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी membership यानी इस बोर्ड की अगर कंपोजिशन प्लस इसको किस किस्म की इंफॉर्मेशन दरकार है, अगर वो 2 चीजें करोगे तो इससे तुम्हें ये बेनिफिट होगा कि योर कस्टमर्स विल बी हैप्पी बिकॉज देयर नीड वुड बी सेटिस्फाइड, है ना, मोर रिस्पॉन्सिव टू इच कस्टमर नीड। कस्टमर्स जो है वो हैप्पी होंगे एंड इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ TT4U करंट कंटेक्स्ट, करंट बिजनेस नीड, कि तुम्हारे इस वक्त जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है और इस वक्त जो तुम नियर बेड अप्रोच और गोइंग टू प्लानिंग फॉर द ग्रोथ एंड प्लानिंग फॉर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग एंड योर शेयर होल्डर ऑल इस करंट कंटेक्स्ट में, my suggestion is that your membership of the board has to be changed, plus at the same time you need this sort of information. Good question, healthy question. Once again मैंने आपसे कहा easy question seriously। अब आप जरा गौर से देखिए, मेरी बात को जरा पहले, इस वक्त प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है इदारों के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। लेट्स थिंक ऑफ अ मल्टीनेशनल बैंक। ये बात मैंने पढ़ी थी आई थिंक 20 साल पहले, ये बात नहीं कर रहा हूँ 20 साल पुरानी किताब की बात कर रहा हूँ, मैंने पढ़ी होगी 16 साल पहले, 17 साल पहले, और वो बात मैंने पढ़ी थी जैक वेल्च की किताब में। और जैक वेल्च क्रेजी ऑसम गाय, भाई जैक वेल्च, अब तो लेट हो गए ना जैक वेल्च, the General Electric, the chairman and CEO, 40 years experience as the chairman and CEO of General Electric। सही है ना, यानी इसको यूं समझे कि जैसे हम कहते हैं ना कि अदाकारी में अमिताभ बच्चन टॉप ऑफ द लाइन, ये जब मैनेजमेंट की बात होती है when we talk about CEO and seniors and all that, Jack Welch is that guy। ठीक है, इसने अपना पूरा तजर्बा उस किताब में लिखा था। if you get chance must read this book, winning जो किताब है, ठीक है ना, मैं तो बड़ा फैन हूँ उसका। उस किताब में इसने लिखा था, जिसमें 2001 में किताब लिखी थी, सही ना, इसलिए कह रहा हूँ पुरानी, मैंने कोई 16-17 साल पहले पढ़ी था। उसमें उसने बात लिखी थी कि जस्ट थिंक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल बैंक, व्हाट आर द चैलेंजेस देयर। जरा थोड़ी देर सोचे, एक बैंक के कंपटीशन, सोचे जरा, फ्रीक्वेंट करेंसी चेंजेस, फॉरेक्स उसके चेंजेस, कमोडिटीज उनकी इन्वेस्टमेंट, ये यानी कितनी पंचायतें, कितनी, जस्ट थिंक ऑफ वन बोर्ड। उसने कहा जरा सोचे कि उनके पास क्या, उनके पास, यानी आप ये सोचें, जस्ट इमेजिन द रिसोर्सेस, कि उनके पास रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितना टाइम होता है। आप और मैं ही सिर्फ सोच लें, हमारे पास विद दिस जस्ट सेल फोन वी डोंट हैव टाइम। जस्ट थिंक ऑफ अ बोर्ड ऑफ मल्टीनेशनल बैंक, कितने चैलेंजेस उसको देखने, सही ना, इकोनॉमिक रिसेशन को भी देखना है, इसको कंप्लायंस के इश्यूज को देखने हैं, सेंट्रल बैंक को देखना है, स्टेट बैंक को देखना है, कितनी चीजें। तो बोला क्या उनके पास टाइम होता है इतना, मैं कलर चेंज कर, उनके पास क्या जरूरी है हर बात में स्किल्स हो इतने, कितनी चीजें, बोला ये सारी चीजें। तो हाउ कैन यू प्रोजेक्ट दिस स्मॉल बोर्ड, हाउ कैन यू प्रोडक्ट एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस स्मॉल बोर्ड, दिस फ्यू पीपल, 2, 4, 5 लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करें कि
they will be super smart and they do everything. इसकी मिसाल जब मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि एक इंस्पेक्टर जनरल हो और हम बोलते हैं कि पूरे स्टेट का, पूरे सूबे का एक आईजी हो, पुलिस का आईजी, जिसको क्राइम को भी देखना है, ट्रैफिक को भी देखना है, एंटी नार्कोटिक्स को भी देखना है। How is that possible? It's one brain, human limitation. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ जब आप बात कर रहे हो तो आप ये सोचें कि आप क्या बात कर रहे हो। यानी यहाँ पर if we look at the TT for you guy, तो TT for you में ये जो मेजर, ये जो सर्विस डायरेक्टर and your मैनेजिंग डायरेक्टर एंड योर IT डायरेक्टर, आपका मैनेजिंग IT डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, ये सब, ये तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव और ऑपरेशनल लेवल पे एंगेज है। खुद देखें, ये तो ऑलरेडी एंगेज है। लिखा है ना कि सेल्स डायरेक्टर इज नॉट ओनली सिटिंग इन द बोर्ड बट एट द सेम टाइम he is working, he or she is working with the team, कि वो छोटे businesses को भी देख रहा है। मार्केटिंग डायरेक्टर not only serving the board but at the same time वो नीचे भी सारे IT डायरेक्टर, पब्लिक सेक्टर टीम को भी देख रहा है और IT डायरेक्टर। What are you expecting? तो सबसे पहले तो यही आपने बात करनी है कि as the business is growing and what is their intention, what is their plan, they're going towards growth strategy. This is what their major shareholders demand, कि they want this company to be listed on stock exchange. तो जब when organization size grows, ये जो stock exchange की बात की है, at the same time this new bad approach, they're bringing a transformation change and all that, जब इदारे का size grow कर रहा है तो obviously it requires a different composition and a different board. Right now they are too occupied, और इसमें आपने पूरी एग्जांपल देनी है इसकी कि भाई आप खुद देखेंगे तो फुली ऑक्यूपाइड बैठे हुए, टोटल ऑक्यूपाइड है, फुली ऑक्यूपाइड दीज थ्री मेजर पीपल, ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये बात करनी होगी। सबसे पहले मैं आपको और थोड़ा सा समझा भी दूं। यहाँ पे आपको पता है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जब बोर्ड मीटिंग होती है, एक होती है इट्स जस्ट अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, दे जस्ट डू दिस फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज। रबर स्टैंड बोर्ड होता है, कोई काम का नहीं, वो तो आते हैं, चाय ठंडा पिया, ओके, चिड़िया बिठाई, साइन वाइन किया, ऑलराइट सर, लेट्स हैव डिनर, थैंक यू सर, भाई वो सेल्फी निकल गया। दैट्स नॉट अ बोर्ड, दैट्स नॉट बोर्ड मीटिंग एक्चुअली, ठीक है ना। चाय पर कितने बड़े नाम बैठे हो, मजा ये आता है कि व्हेन दे कम अप विद देयर होमवर्क। इसीलिए पुल के उस पार या पुल के इस पार इस तरह एक ऐसे भी हालात है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पता है कितनी तनख्वाह मिलती है पर मीटिंग अटेंड करने की। चलो मैं डॉलर्स में बात करता हूँ, $50, $40 पर मीटिंग। ऐसे भी है, यानी 5,000 रुपए, 6,000 रुपए में 8,000 रुपए, 8,500, 10,000 रुपए के। सर आप मीटिंग में आ जाइएगा, आपका नाम हमने लिख दिया NED में, आप आते हैं। अब नाउ द शेयर होल्डर्स आर सेटिस्फाइड, ओके दे हैव 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड दे अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग, दे आर गुड फॉर नथिंग। उनको 10,000 रुपए मिलते हैं, वहां के बैठ जाते। ऐसे भी इदारे मैं जानता हूँ। और ऐसे भी इदारे होते हैं जिसमें एक मीटिंग अटेंड करने के, लेट्स से जस्ट 1 hour मीटिंग, एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दे गेट $10,000 पर आवर, $10,000, यानी बात हो रही है 18, 19, 20 लाख रुपए 1 घंटे के वो लेते हैं। अब आप क्या सोचते हैं, इज जस्ट दैट 1 hour फॉर दे गेटिंग $10,000? नो, इट्स द होमवर्क। जो 2-3 महीनों में होमवर्क किया होता है उसपे कि भाई व्हाट इज द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एजेंडा। फिर जब वो आते हैं, दे कम अप विद देयर आइडियाज एंड ऑल दैट, फिर जो डिबेट होती है और जो जॉगिंग ऑफ माइंड होती है, उसके पैसे मिलते हैं। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर भी इस बात को समझे कि दे हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे डूइंग इट, बट दे एक्चुअली द मेजर पीपल 50% या उससे ज्यादा बोर्ड तो ऑलरेडी एंगेज्ड है एग्जीक्यूटिव उसमें। तो व्हाट इज माय सजेशन? माय सजेशन इज कि दे शुड हैव अ कंप्लीट बोर्ड रोल विद डेलीगेशन थिंग। लेट मी चेंज इट, say now with delegation on senior management टीम्स। ये बहुत जरूरी होगा उनके लिए। या तो बोर्ड का साइज बढ़ाओ, या तो बोर्ड का साइज बढ़ाओ, यानी इफ यू वांट दीस एग्जीक्यूटिव पीपल दे वर्क विद हैंडलिंग योर टीमिंग्स एंड बिजनेसेस एंड ऑल दैट, तो फिर तो या तो बोर्ड का साइज बहुत बढ़ाओ, या फिर सबसे अहम बात जो कि मैं एडवाइस करूंगा कि भाई गो फॉर डेलीगेशन इन सम टीम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऑपरेशनल सुपरवाइजर्स की टीम बनाओ, दे विल बी हैंडलिंग इट, नो, सीनियर मैनेजमेंट टीम्स बनाए जाए जो बोर्ड के साथ काम करें इस तरह, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इनके यहाँ ये भी नजर आ रहा है कि ओनली दे हैव द बोर्ड थिंग, नो बोर्ड कमिटीज एज वेल, सिर्फ बोर्ड नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इनका बोर्ड सारे काम कर रहा होगा। अब आप बताना इसमें, लेट्स से द रेम्यूनरेशन थिंग द बोर्ड इज टेकिंग केयर, द नॉमिनेशन थिंग they don't have any nomination committee, the board is taking care right now, the risk management committee, okay, the audit committee, they have all those functions conducted by the board, that's it.
इनका तो बोर्ड सारे काम कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि फॉर दिस हैंडलिंग द बिजनेस एंड ऑल दैट दे हैव टू डेलीगेट इट। दूसरी बात, अगर आप इस बोर्ड के अंदर देखें तो सीईओ, और आप लोग ये चीज आजकल देखते हैं कि सीईओ के साथ दो बंदे काम करते हैं। एक बंदा काम करता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस का काम करता है, व्हिच इज कॉल्ड सीएफओ, और एक बंदा होता है जो ऑपरेशंस का काम करता है, और इनके ऑपरेशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि दे हैव द सीईओ गाय हियर, दे हैव सीएफओ, फाइनेंस का काम करने वाला फाइनेंस डायरेक्टर का रोल नजर आ रहा है। वेयर इज दिस गाय? ऑपरेशनल गाय, chief operational officer is out. So we need one guy, because the person, there is one MD, CEO मौजूद है, the CFO is looking at his own work, the finance and all that. What about the operational issues, जो inefficiencies operations में, accounting में, website पे, इस पे, communication, we need an operational guy। तो एक तो हम ये कहेंगे कि इसको लेके आओ, ठीक है। फिर आप अगर बोर्ड में देखें, इस वक्त ये बात कर रहे हैं ई मार्केटिंग की। They talk about e-marketing, which is this requirement. Say in a cloud-based services, they're launching a new product and all that. Your marketing guy is fully engaged with what? With the business people. Say ना कि वो business को भी देख रहा है marketing. Sole role चाहिए marketing director का। आपको पता होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ कुछ functions इतने important हो गए, functions, for example, production, purchase and all that, कि उनकी जो सीट है वो बोर्ड में भी दी जाती है। तो यहाँ पर भी एक चीज नजर आ रही है कि मार्केटिंग डायरेक्टर है तो है, बट इज जस्ट अ रबर स्टैम्प गाय, वंस अगेन फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज चल रही है कि वो दूसरे काम कर रहा है। हाउ कैन ही सर्व द बोर्ड? तो हम ये बोलेंगे कि मार्केटिंग डायरेक्टर has to have sole role, so you know, for marketing, because you're doing now e-marketing and launching a product and all that. फिर उसके बाद अगर आप देखें तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डायरेक्टर नहीं नजर आता, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं नजर आता। तो मैं उसकी भी एक एडवाइस कर सकता हूँ कि ऑलरेडी दे हैव द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, दे ऑलरेडी इन अ फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री उस तरफ मौजूद है। तो वो कोई R&D या फुल टाइम कोई IT डायरेक्टर, ऑलरेडी दे हैव IT डायरेक्टर, लेकिन वो ये रोल कर सकता है if there is a delegation of senior management team, अगर वो मौजूद हो, जो कि मैंने पहली एडवाइस दी। फिर इसी तरह आप देखिए कस्टमर्स जो हैं उनको 25,000 प्रॉब्लम है with what? With your staff. They don't have any training. Maybe there is no as such salary packages, there is no motivation, you're introducing a change, उसके कुछ यानी पता चला कि HR डिपार्टमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं, मार्केटिंग, HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो वी नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, परचेज, ये चीजें तीन ही नजर आ रही है। इसी तरह सेल्स, they have the service director and all that, लेकिन सेल्स डायरेक्टर, HR डायरेक्टर, यानी जो फंक्शंस इनके इंपॉर्टेंट है, HR is very important, और इसको आप लिंक करोगे विद क्लाइंट सर्वे, ऑलरेडी what sort of feedback you getting from the client? Client कह रहा है कि भाई ना इनका HR वो up to date है, ना इनकी proper training है, they're doing what they're doing for long। तो उसके इसका मतलब ये कि when you're introducing new thing, you need to have a good HR department and HR director presence must be in the board। तो ये तोड़ मतोड़ कुछ करनी है। This is the first thing I talk about executive management। अभी मैंने नॉन एग्जीक्यूटिव की बात नहीं की, अभी तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात की। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात की, नॉन एग्जीक्यूटिव की बात नहीं की ना। Let's talk about non-executive director. What is your plan? Your plan is to be listed on National Stock Exchange. When you plan to go on National Stock Exchange, obviously the stakeholders demand some sort of control. Control उनको चाहिए, और control कैसे मिलेगा? Control मिलता है with NEDs. Why you want NEDs in the board? For independence. ठीक है ना, क्योंकि आप इस वक्त अगर आप बात कर रहे हो कि we growing and we have only the executive management people there, what will happen is कि they are engaged with return management, ये already return के साथ भी engaged हैं, तो क्या होगा? Nobody knows about, यानी who will give the assurance about the independence of decision? Who will take care of risk management? भाई जब आप सोचे ना, जब when people are engaged and when their personal interest is with return, obviously they'll take more risk, वो तो risk को इतना बढ़ा देंगे उस return के चक्कर में। तो that's why we need NEDs, the presence of independent NEDs in TT for you right now, because they are listing on National Stock Exchange. This what the plan is and growing, so they need, their stakeholder needs control उनको चाहिए, उनको independence चाहिए, उनको risk management चाहिए, and they want accountability। किसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट से देयर शुड बी समवन हु कैन रेज क्वेश्चन, हु कैन आस्क क्वेश्चन। देन आल्सो यू वांट फ्रेश ब्लड,
You want outside blood for innovation. आपको ऐसे लोग चाहिए जो इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हो. हाँ, you need people, you need outsider, you need independent people, you need competent people, सब नाम के साथ trained लोग आपको चाहिए in the form of NEDs. Those sit in the board when you are bringing a change, when you bringing a change in strategy, when you have new objective and new product. So obviously you need to have people outside your organization, so they come up with fresh ideas, new ideas, innovation लेके आए ये सब चीजें. Then you need to be more competitive. Those competition के लिए भी आपको NEDs चाहिए कि भाई वो NEDs ही आपको बताएंगे, because they have seen ups and downs in the industry. उन्होंने देखे होते हैं वो ups and downs, तो they can be more competitive. सही है ना. इसी तरह एक और बड़ी अहम बात इसमें ये भी है कि जब ये NEDs आएंगे, अभी जो आपके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, those who are fully occupied and all that, वो क्या कर रहे हैं? एक तो fully occupied है तो you'll have more time and more skill, more resources you actually bringing in. अभी इस वक्त एक ही NED है जिसकी इतनी से नहीं है, तो जब आप एक आगे इसको बढ़ा रहे हो, and when you have plan to go on national stock exchange, अगर अभी आप NEDs ले लोगे तो they will get more training and they will they'll cope up with that challenge of stock market listing. ठीक है ना. उससे फिर एक और बात, आपके पास अभी भी रेक्स इन्वेस्टमेंट का मसला चल रहा है. आपकी प्रोडक्ट ऐसी जिसमें डेटा के कॉन्फिडेंशियलिटी के ये वो सारे इश्यूज हैं. यू नीड टू हैव NED टू मैनेज कंप्लायंस रिस्क. उसको भी तो मैनेज करवाना है. You need to have NEDs so that you can have maybe new board committees. Maybe in future listing requirement हो, जैसे New York Stock Exchange, उसकी तो mandatory requirement है, you need to have audit committee. मस्ट हो आपके पास. तो हो सकता है इन फ्यूचर, और ऑडिट कमेटी आपको किसकी चाहिए? NEDs की चाहिए. Maybe you need to have remuneration committee in future. तो जो आपका प्लान है ना उधर पहुंचने का, उसके लिए this is the true good leadership. कि you'll be ready with those NEDs you hired right now, or appoint or elect कर लोगे उसको, and then in future not only your board would be balanced, but at the same time if maybe the listing requirement, compliance, legal requirement ho, or maybe your shareholder demand, or maybe for their comfort factor you need to have audit committee or remuneration committee or nomination committee. This TD4 you can do it. So with the help of these NEDs. एक और बड़ी अहम बात मैं यहाँ पर करूँगा, succession planning, जो हमने अपनी first requirement में भी की थी. मैं इसका एक बहुत बड़ा एडवोकेट. आपका इदारा इस पर डिपेंडेंट है एक दो लोगों पे. If they're gone, everything gone. यानी this is not the organization, this is just few people. They're doing it. तो अगर ये बन गए सब खत्म, और if they go to the competitor, or if they are died, or if they're not interested, or their health is down, तो फिर क्या होगा? So we need to have people who can fill up their shoes, fill up their places, their spaces. तो हमें अभी वो लोग चाहिए. They can be a good successor बन जाए, या maybe they'll have the nomination committee or some sort of training thing, and they'll bring new people, those who can sit on CEO or service director or IT director on their place. अभी इस वक्त कोई succession planning भी नहीं है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी risk management होगी. Now यार SBL में तो बहुत कुछ है भाई बोलने का. Okay, let's look here. अब यहाँ पर आपने दूसरी बात इनको एडवाइस करनी है, इंफॉर्मेशन. देखो आप बोर्ड में जो चेंज ला रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि भाई आप जस्ट ब्रिंगिंग अ चेंज इन मेंबरशिप और चेंज कर रहे हो बिकॉज इट विल लुक गुड. नो, प्रोफेशनल मार्क्स से कमर्शियल एक्यूमेन के सोचना है कि ओके, इफ यू ब्रिंग दिस गाय, it will increase our number. If we give you full-time role of marketing director, how it will help us? If we bring HR guy, we bring CEO, bring more NEDs, will look more beautiful, more colorful in the stock market, more comfort factor. Our stock price will go up. Commercial acumen को दिमाग रखना है. अब यहाँ पर information supply, जरा तवज्जो से इस बात को देखिए. Competent board किसी काम का नहीं है. Membership हो गई, competent board आ गया, किसी काम का नहीं है until and unless they meet regularly, and until and unless they have accurate information. Accurate ये mnemonic है कि complete information हो, उनके पास accurate information हो, timely information हो, आपके पास ये क्या है, user friendly information हो, easy to use हो, ठीक है, और ये क्या complete, concise, whatever, ये accurate information. Very important is, ये बात मैं गवर्नेंस में पढ़ाता भी हूँ, एक तो हो कि बोर्ड है और वो काबिल ही नहीं है, तो हमने एक बात तो कर दी कि we will have a change in membership and composition of the board and balance or executive और जो आ गए. Once you have these guys on the floor, अब क्या चाहते हो? They have to meet up. एक practical problem यही है जो आप लिख भी सकते हो. What is the practical problem? Practical problem ये है कि when you want to enhance your
corporate image, your share price and all that. उसके लिए आप क्या करते हो? You give good money to the NEDs and to the board of directors, और उनके नाम आप अपनी किताबों में लिखवाते हो कि okay, we have this lawyer in the board, we have this guy in the board, we have this auditor in the board. और वो इतने बड़े वो होते हैं, वो से मुराद big huge VIPs, business tycoons, big lawyers. They don't have time. They're just giving your name, giving the name to you, and they ask you to just publish it. Give us our money, that's it. जब भी मीटिंग होगी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल आंखों देखी बातें बता रहा हूँ, जब भी मीटिंग होती है, जो मीटिंग अरेंज करा होता है ना, सर आर यू अवेलेबल टुमारो? नो आई एम नॉट, आई एम आउट ऑफ कंट्री। हाँ भाई आप हो? नहीं मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। जब ये इसको कॉल करता है, वो आ चुका होता है, तो ये निकल गया। अरे बड़ी पार्टी है, आपने अपना नाम तो ऊंचा कर लिया उनके नाम डाल के, but they never sit on board, they never sit in the board meeting, they never give idea, nothing. सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि not only the competent board is required, but they have to meet up regularly. और उनकी मीटिंग से भी क्या होता है, if they don't have information. तो अब यहाँ पर हमें बात करनी है कि what sort of information and how the information supply, ये जो इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी, इससे बोर्ड को क्या बेनिफिट होगा? तो ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेफिनेटली द बोर्ड रिक्वायर्ड द डैशबोर्ड इंफॉर्मेशन। एक डैशबोर्ड तो उनको चाहिए, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इंडिकेटर्स, उनको चाहिए कि हाँ भाई पता हो कि हम पहले कहाँ थे और अब हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ, सो दैट दे कैन डू बेटर स्ट्रेटजीज, especially when this time they're adopting this Mio-bed approach and they're bringing a big change. ये जो change लेके आ रहे हैं, तो इनके पास this board need to set some KPIs, key performance indicators, and they will have timely and complete and accurate information, actual information, so that they can see where our direction is, where we going. ठीक है ना? तो बोर्ड के लिए सबसे अहम बात तो ये है कि because this time growing, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, तो आपको ये सब देखना होगा इस information से, when you'll have timely and relevant and complete information, you can measure those KPIs and you can measure the success of change. ठीक है ना? Strategies उनको देख सकते हो कि how successfully implementing your strategies and all that. फिर बड़ी अहम बात, risk management. If the board is getting information about not only internal but external as well. For example, about the competitors. Who is our competitor? हमारे competitor कौन है? What sort of product they're launching? What is their size? सही ना? What's their customer base? What's their target audience? What sort of value they providing? अगर ये सारी information, क्योंकि board meeting का मकसद ये नहीं कि supervisor की meeting नहीं हो रही, board meeting में जो information चाहिए, वो information भी उसी level की चाहिए. We need to have competitor information so that we can introduce some new value in our organization, और बाद में वो implement होती रहे. तो yes, for business risk, हाँ, इंटरनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी चाहिए. और देखो ये बोर्ड का ही तो काम होता है. इफ देयर इज नो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू गिव अर्ली वार्निंग अबाउट द रिस्क. जैसे जहाज उड़ रहा होता है तो बहुत दूर से वो रडार बताता है ना कि आगे ये क्लाउड है और फलाना है और ढिमाका है. दैट्स द कांसेप्ट ऑफ द बोर्ड. ये भी वही कैप्टन और स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम्स सिटिंग, एंड दे हैव द होल रिस्पांसिबिलिटी towards shareholders and towards overall stakeholder of the organization. तो इनके पास information होना जरूरी है about external information as well. For example, pestle. What is our legal environment going on? What sort of economy going on? Political environment क्या कह रहा है? Society, what's the taste going on? ये सारी information, competitor information, big performance indicators of growth strategies and all that, and then about the customer and sales, उसकी information होना बहुत जरूरी है. For example, that client survey, regular client survey इनके पास होना जरूरी है. So, for example, if they're meeting me monthly or quarterly or bi-monthly or whatever, so they need to have client survey once again with some relevant KPIs. ये पता होना चाहिए कि जो हमारे customers हैं, जैसे for example, यहाँ पर example दे सकते हो Rex investment. कि भाई ये बोर्ड को पता होना चाहिए, and it should be the agenda in the board meeting that yes, this Rex investment is a possibility and maybe we may lose this particular client. Already वो इतना pressure में. और दूसरा मसला ये है कि we getting an unanimous call, वो जो बात हुई थी कि we getting a threat about the data confidentiality thing, उसके बारे में. Yes, so they need to have good information and timely information about the customer, especially with the survey thing. फिर इसी तरह they need to have legal information. Legal and compliance. How can they manage compliance risk? What are the new laws coming up which is actually hitting their particular industry and their organization? क्योंकि ये जिस केस में engage हैं,
क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में, आईटी सर्विसेज में, उस पर देयर आर डिफरेंट लॉस कमिंग अप एवरी डे, क्योंकि एक बड़ी इमर्जिंग, अब तो बड़ी मेच्योर और साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इमर्जिंग भी है, ये मेच्योर के साथ इमर्जिंग इंडस्ट्री भी चल रही है ना। तो इसमें ये देखना होगा कि एवरी डे द न्यू लॉस कमिंग अप, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी मैंने कहा ना एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एंड लीगल इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द कस्टमर्स, वो इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए। What's going on in the organization, some sort of exceptional reporting channels. This is very important for the board to take good decisions. So to take good business decisions, wo ye le sake. So they need to know about the business risk, external, affecting externally, internally, about the client, so that they can better satisfy them. Planning for some change, organization structure or new strategies, or if they adopted a new approach like neobed approach, how successfully they implemented, uski information unke paas, ye sari information hogi, and then they will have a regular board meeting. It will be a good success and a good board. सही है। देखिए अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को देखें, ये जो हमने रिक्वायरमेंट्स देखी, उसमें ज्यादा इतना लिंकेज नहीं है जितना ये कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। और ये भी बड़ा जरूरी है कि व्हेन यू लुक एट द रिक्वायरमेंट यू नीड टू नो ओके दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यही बात जब मैं पढ़ाता हूँ एसबीएल, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको एसबीएल में रटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपने वो जो रिक्वायरमेंट देखी जो बिफोर दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट व्हिच वी आर एडवाइसिंग टू द सीईओ अबाउट द चेंज, तो आपके दिमाग में पूरा वो चेंज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यस मैकेंजी ने क्या बात की थी, व्हाट इज दैट ड्राइविंग एंड रीस्ट्रेनिंग फोर्स, हाउ टू ब्रिंग अ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, वो जो 3 स्टेजेस थे, फ्रीज, मूव एंड रीफ्रीज स्टेज बाय लिविंग, ये सारी चीजें कि रिस्क मैनेजमेंट की, तो चेंज का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में हाउ यू इंट्रोड्यूस अ चेंज, इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट, एंड देन यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट। आपको उसको लिखना है कि हमें किस तरीके से एक सीईओ की क्या रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। वो आपसे नहीं कह रहा कि मुझे मैकेंजी का 7S मॉडल अप्लाई करो, बट यू कैन डू इट। क्या आपको पता होना चाहिए हाँ 7S फैक्टर इज वेरी एक्टिव हियर व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक चेंज, बिग चेंजेस, और इसकी बात करें और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। once again very professional, whatever going on in the back of the mind, think like you are playing that role. जब आपसे कहते हैं ना कि you are a CEO, you are the consultant, you are the manager, whatever, बिल्कुल उस पूरे context को दिमाग में रखें, कोशिश करें, तभी this will help you when you're doing this, obviously when you'll be playing the real match, लेकिन उससे पहले when you're doing this fast practice thing, सही ना, उसमें आप ये ख्याल करो, एक चीज तो बहुत जरूरी कि अगर if the paper is let's say 4 hours, 4 hours 15 minutes whatever, उसके लिए आप उसी टाइम में उतना ही बैठो। डोंट डू लाइक दिस कि मैं ये किया फिर मैं खाना खा लिया, लंच कर लिया, फिर 2 दिन बाद देखूंगा क्यों ना, उसी तरह। और कोशिश करो कि उस सिनेरियो में अपने आप को रखो, कंसीडरिंग, आंखें बंद करके सोचो, कंसीडरिंग द होल कॉन्टेक्स्ट, ओके दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज पीपल, दे आर ऑफ दिस एज, इतने बाबे हो गए, वो ओरिजिनल फाउंडर हैं, कितने साल पहले डाला। अब एक बंदा देखे कि लेट्स से यू अटेम्प्टिंग अ पेपर इन 2021 या 2022 23 व्हाटएवर, और वो कह रहा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म 30 इयर्स बैक, 30 इयर्स बैक, और उसके बोर्ड में वो दिखा दें द सीईओ, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज द ओरिजिनल फाउंडर, तो आपके दिमाग में फौरन घंटी बज जाएगी कि इसका मतलब है उस टाइम पे मे बी यू वुड बी 30-35 इयर्स व्हेन यू आर एंटरिंग इन दिस बिजनेस, और उसके बाद इसने 30 साल आज और हो गए, इसका मतलब ये 70 साल का बाबा है। ओके ये एक दफा P3 में सवाल आया था और उसमें बच्चे कहते हैं कि इसने ये टाइम पीरियड क्यों दिया, तो उसमें ये बात थी क्योंकि आखिर में वो दिखाते कि द गाय इज नाउ वेरी एग्रेसिव एंड ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंड ऑल दैट, सारी बातों फौरन क्लिक करना था कि देखो he was a successful guy when he was graduated, उन्होंने ये दिखाया था कि he was graduated and then he started a business, लेकिन फिर दिखाया कि 20 साल बाद ये हुआ, फिर 10 साल बाद ये हुआ, फिर पता चला कि उन्होंने उस बिजनेस में दिखा दिए 40, 45, 50 इयर्स, जब वो ग्रेजुएट किया था तो 25 इयर्स का था, 50 साल का सही गुजर गया। यानी बच्चे जो है वो सवाल पढ़ रहे हैं एंड दे आर इग्नोरिंग द डेट्स कि 1971 टू 80 क्या हुआ, 82, वो सारी डेट्स वर रेलेवेंट, क्योंकि एट द एंड जो रीजन ऑफ वन ऑफ द रीजन ऑफ फेलियर वाज हिज एज, कि उसकी एज ऐसी हो गई थी। खैर देयर वाज सो मेनी एज प्रॉब्लम्स, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज, ये एक सवाल मुझे याद है P3 में आया था, ऐसा होता। अब ये भी देखना है पूरे उस कंटेक्स्ट में सोचना है, यार इसके बोर्ड में लोग कैसे बैठे हुए, वो तो ओरिजिनल फाउंडर बैठे हैं और इदारा 50 साल पहले बना है, तो इसके अंदर तो सारे बुजुर्ग बैठे हैं एंड दे आर वेरी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री।
फास्ट पेस इंडस्ट्री में आप क्या करें? खैर इसमें इसने ऐसा नहीं बोला कि ये इदारे का क्या और ये बुजुर्ग है, लेकिन समटाइम आपको ढूंढना होता है। देन थिंक ऑफ द कंपटीशन, थिंक ऑफ देयर लीगल एनवायरनमेंट, इफ इट इज एन एडवांस कंट्री और अंडर डेवलप्ड नेशन, उसके बारे में सोचें। अबाउट इट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई बात दी गई, अबाउट देयर डिससैटिस्फाइड कस्टमर, उनके फेसेस ऑल सैड फेसेस, थिंक ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन सब चीजों को सोचोगे, यू विल गेट गुड आइडियाज। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ याद आएगा, लेकिन आप देखिएगा इस दिमाग में जो पॉइंट्स आप प्रोड्यूस करोगे ना, obviously you need to have good writing and professional and technical jargons and vocabulary, that's a separate thing, वो तो आपको चाहिए, लेकिन जो आपके दिमाग में पॉइंट आएंगे ना, वो प्रोडक्टिव पॉइंट होंगे, हेल्दी पॉइंट होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। थैंक यू। और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ऑलराइट